लेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में. सो ऑल आई एम गोइंग टू कवर इज दी all your neat concept. Okay, so let's start within detail. So whenever we start with a chemical coordination and integration, okay, so it's all about, this chapter is all about what are the chemicals like hormones, enzyme present in the human body. Okay, this is a part of the human physiology we're going to talk about. So before we go ahead, we are going to talk about in detail. हम डिटेल के बारे में डिटेल में एक बात करेंगे सब के बारे में अच्छे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है कौन सा क्या फंक्शन है, राइट? So when you talk about the chemical coordination and integration, the first thing you should know is about the gland. Okay, so what is gland? So the gland is a group of cell. ये क्या है? Group of cell है. Okay, group of cell है that are specialized for a secretion of a particular substances. So they are what? A specialized for secretion of particular substance. Okay, so the gland is basically specialized for a group of cell that is specialized for a secretion of particular substances. So when you talk about the glands, so there are some types of the glands. So let's study about it in detail. What are the glands? So here we go. So when you talk about the gland, just we talk about gland is what? A group of specialized cell that secrete a particular substances. Okay, that we have done. So these glands are classified into two types. First is the exocrine gland. Exocrine gland. See, the name itself suggests us something. What's that? When you talk about the exocrine, that is the secretion of these glands are carried by the ducts. So this carry the ducts to a particular organ. Example of the exocrine glands are salivary glands, salivary gland, and the liver. Okay, and the next one that is the second type of gland is endocrine gland. Let's talk about that in detail. It's a endocrine gland. See, endocrine, exocrine outside. Endocrine definitely inside. So if it is inside, so they are ductless. They are what? A ductless gland. So they do not possess a ducts and they pour their secretion directly into the bud. They pour their secretion directly into the blood because they are ductless. That's the common sense, right? Yes. So, according to this, endocrine glands are bifurcated into, one is holocrine gland, crine gland. What is gland? Crine means to secrete something. Okay. Hollow. They secrete only hormones. They secrete only hormones. They secrete only hormones. That is thyroid. Example क्या रहेंगे इसके? Thyroid gland रहेगी and adrenal gland रहेगी. The second one is, see, hollow H for that, only hollow, only the hormones. The second one that is heterocline gland. अभी ये heterocline gland क्या secrete करेगी? This is the second one. So जो heterocline gland है वो क्या करेगी? They are dual function.
तो ये क्या है, ड्यूअल फंक्शन। अब ये ड्यूअल फंक्शन का मतलब क्या? सो दैट इज द सीक्रेट हार्मोन एंड हैव द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो दे सिक्रीट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी करेंगे, प्लस इट हैव अ physiological effects. They have a physiological effects as well. Okay, so that is called heterocline gland. So क्या एग्जाम्पल रहेंगे इसके? एग्जाम्पल रहेंगे टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करेंगे, एंड उसके फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स तो पता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल, राइट? एंड दी pancreas are the example of heterocline gland. Now अगर बात छेड़ी ही है हमने हार्मोन्स की, तो होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? ओनली हार्मोन्स। तो व्हाट आर दी हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। ओके, तो ये जो हार्मोन्स के बारे में बेलिस एंड स्टार्लिंग ने 1993 में हमको बोला था। किस, कौन साइंटिस्ट थे? बेलिंग्स, बेलिस, okay, not Bailings, it's actually the Baylis. Okay, the Baylis scientist name is what? Baylis and Starling. इन 1993 में इन्होंने हार्मोन्स के बारे में बोला था। तो क्या हार्मोन्स के बारे में बोला था? लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो दिस आर द केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट उसमें क्या बोला था? दे आर अ केमिकल substances definitely that are produced or released by the cell or a group of cell. group of cell में क्या बोला था हमने? gland या फिर सेल देके सिक्रेट होंगे। ओके, दैट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मोस्टली हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सक्लूसिवली ओनली हार्मोन सिक्रेट करेंगे, दैट वी हैव जस्ट स्टडीड। ओके, दैट वाज द। नाउ टारगेट सेल आर द सेल अफेक्टेड बाय द हार्मोन। तो अगर हार्मोन, समझो ये पर्टिकुलर हार्मोन है, ओके, ये कहाँ जाएगा? टारगेट सेल पे। अब ये टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करके टारगेट सेल में कुछ चेंजेस लाएगा, राइट? सो कैन आई से दैट हार्मोन्स अफेक्ट द टारगेट सेल? सो what is the effect is generated after hormone reaching to particular target cell? जैसे कि एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, लेट्स आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन acting on what? Which target cell? We can say Sertoli cell. Okay, on Sertoli cell, there is no effect of testosterone, but there is a effect of LH, luteinizing hormones. They act on a Sertoli cell for the nourishment of sperms. Okay, and the testosterone secreted by the testes, right? Yes or no? They also promote spermatogenesis. तो इन दोनों का टारगेट, ये जो हार्मोन्स है उनका टारगेट क्या हो गया? टेस्टिस हो गया, राइट? सो ये टारगेट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन इफेक्ट क्या हो गया? एक तो सर्टरी से नरिशमेंट दे रहा है, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो रहा है? थोड़ा सा प्रमोट हो गया। ओके, सो दिस आर दी हार्मोन्स, और ये टारगेट सेल पे इफेक्ट देंगे। सो दिस टारगेट सेल्स आर सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव टू द हार्मोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिसेप्टर ऑन देम। तो हमने तो ये तो बात बोल दी कि ये टारगेट सेल पे अटैक करेंगे, लेकिन ये हार्मोन ये पर्टिकुलर टारगेट में जाएंगे कैसे? तो टारगेट ऑन दी टारगेट टारगेट हैव अ रिसेप्टर। क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स रहेंगे। तो ये जो हार्मोन्स रहेंगे ये पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। once the receptor and hormone complex is formed, that leads to the effect, whatever the effect is needed. तो हार्मोन सिक्रीट हुआ तो टारगेट के ऊपर जाएगा, टारगेट में कहाँ जाएगा? रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा और अपना क्या देगा? इफेक्ट दे देगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। सो जो हार्मोन्स रहेंगे उसके भी क्या रहेंगे? टाइप्स रहेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स? हार्मोन्स आर क्लासिफाइड into the broad two categories. First one is a tropic hormone. फर्स्ट क्या है?
ट्रॉपिक हार्मोन है। अगर मैंने बोला ट्रॉपिक हार्मोन तो मतलब क्या, दिस हार्मोन स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे अदर एंडोक्राइन, मतलब खुद इफेक्ट, खुद कुछ सिक्रेट नहीं कर रहे, कुछ सिक्रेट कर रहे हैं जो किसके ऊपर काम कर रहा है, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम कर रहा है। एंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड फर्दर क्या करेंगी, ये सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स करेंगे। तो कैन आई से दैट दिस टॉपिक हार्मोन्स आर ट्रिगरिंग, यस दिस आर ट्रिगरिंग वन। सो एग्जांपल है इसका टीएसएच, टीएसएच का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज प्रोड्यूस बाय, किस, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, yes, who is producing the TCH, pituitary, that is master gland, right, pituitary प्रोड्यूस करेगा। और ये TCH किसके ऊपर काम करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। और थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, T3 एंड T4। सो कैन आई से दैट पिट्यूटरी ने TSH को प्रोड्यूस किया, वो किसके पास गया, थायराइड ग्लैंड के पास, एंड थायराइड इज गोइंग टू सीक्रेट T3 T4। तो TSH डायरेक्टली तो T3 एंड T4 तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली TCH इज एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड वो सीक्रेट करता है। सो कैन आई से दैट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन, जो खुद क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को टू प्रोड्यूस दी hormones or to secrete the hormones. Okay, तो in turn simulate the metabolism in many types of body cells, तो T3 T4 क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेंगे। Thus can I say that TSH is a tropic hormone and thyroxine is a non-tropic hormone, तो T3 T4 ये क्या है, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि ये कुछ ट्रिगर नहीं कर रहे, डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी हमने कैटेगरी को देखा, क्या था, ट्रॉपिक जो कि ट्रिगर कर रहा है, तो जो ट्रिगर नहीं करेंगे, जो इफेक्ट देंगे उसको बोलेंगे नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। इसका एग्जांपल भी अभी जैसे हमने देखा, क्या, थायरोक्सिन, राइट। सो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द वाइटल सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे क्या, नहीं, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट दी वाइटल सेल्यूलर प्रोसेसेस, वाइटल सेल्यूलर प्रोसेस को ये ट्रिगर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, टेल मी। प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन सिक्रेट किया, तो कैन आई से दैट प्रोलैक्टिन जो सिक्रेट हुआ है वो स्टिमुलेट क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ऑब्वियसली वुमेन। ओके, सो ये वाइटल फंक्शन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, राइट। सो दिस आर द नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो टीसीएच किया था वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, ट्रिगर कर रहा था टू प्रोड्यूस T3 और T4 थायरोक्सिन, बट प्रोलैक्टिन जो सीक्रेट किया था डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पे जा रहा है, ओके, दैट इज ब्रेस्ट, और वहां पे क्या होंगे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विल बी एनहांस हो जाएगा। सो दिस आर द नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, अभी हमने क्या बात की कि कोई ट्रिगर कर रहा है, तो ये जो हार्मोन्स थे ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक, ये क्या थे, ट्रिगर और स्टिमुलेशन, इनके बेसिस पे थे ये, इनके बेसिस पे ये थे, राइट। अभी हम देखेंगे हार्मोन्स का केमिकल कंपोजिशन, हार्मोन्स का केमिकल कंपोजिशन, तो हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अभी केमिकल कंपोजिशन में ये कैसे काम करेंगे, तो फर्स्ट इज वन इज स्टेरॉइड, फर्स्ट इन वन वाज स्टेरॉइड हार्मोन। अभी नाम ही पता चलता है स्टेरॉइड्स हार्मोन से, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ
कोलेस्ट्रॉल रहेंगे। अभी इसके स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है? ऑल स्टेरॉइड्स लाइक अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, उसके बाद आएगा आपके ऑल सेक्स हार्मोन्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स and estrogen. Okay, estrogen. Then, on the basis of chemical composition, these hormones further classified into proteins and peptide hormones. So, क्या रहेंगे ये? Proteins and peptide hormones. अभी प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स है तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स ये क्या रहेंगे? क्योंकि मेजॉरिटी दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? Proteins and peptides. So they are long chain of amino acid. They are largest group or they compose of long chain of amino acids because amino acids bind होके होके ही क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे. So एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? इंसुलिन डेफिनेटली, एससीजी ये प्रेगनेंसी हार्मोन है जिससे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन से हैं बोलो? Oxytocin and melatonin is there, and GH or growth hormones are there. Okay, on the basis of chemical composition, the third one is amine hormones. तो ये amines में they are very small molecular group. We can say smaller group. They are what? Smaller group. Okay, ये small group है. Okay, these are what? Smaller group. तो इसमें कौन से रहेंगे? सो दे आर मेजॉरिटी डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड टाइरोसिन. तो अमाइनो एसिड किससे मेजॉरिटी दे आर डिराइव? टाइरोसिन. तो स्मॉल ग्रुप है. इसमें एग्जांपल है थायरोक्सिन एंड कैटेकोलामाइन. कैटेकोलामाइंस में क्या आएगा? योर एफिनेफ्रिन एंड नॉरएफिनेफ्रिन. दैट इज अ कैटेकोलामाइंस. ओके, नाउ we have another category in that we are going to talk about these amines into not amines, we're going to talk about the local hormones. लोकल देखो, हमने बात की टारगेट ओरिएंटेशन में स्टिमुलेटिंग है कि नॉन स्टिमुलेटिंग है. देन वी टॉक अबाउट दी केमिकल वन. अभी हम बात कर रहे हैं लोकल हार्मोन्स की. अभी लोकल हार्मोन्स का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू एक्ट लोकली. सो दिस आर सिक्रेटेड बाय दी सेल. सो लोकल हार्मोन्स है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दे आर secreted not by group of cell, only cell. Okay, so these are secreted by the cell but not by the glands and widely dispersed in the body. These are considered as a tissue hormones or non endocrine hormone. तो इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू हार्मोन्स बोलेंगे. और क्या बोलेंगे? नॉन एंडोक्राइन. व्हाट इज नॉन एंडोक्राइन? बॉडी के अंदर उनका सिक्रीशन पोर नहीं हो रहा है, सेल थ्रू हो रहा है, राइट, इसलिए नॉन एंडोक्राइन. तो टिश्यू हार्मोन्स उसको लोकल हार्मोन्स बोलेंगे, नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स बोलेंगे. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल हार्मोन्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो वो किससे सिक्रेट होंगे? सेल से. ये दिमाग में रखना, किससे सिक्रेट होंगे? सेल से सिक्रेट होंगे. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. द फर्स्ट वन इज हिस्टामाइन. हिस्टामाइन जैसे आप सुनोगे आपके दिमाग में क्या आएगा? एलर्जी. देन P1 is leukotrienes. क्या है? Leukotrienes है. And the third one is cytokines. cytokine है आपका. फोर्थ वन है आपका थ्रोम्बोक्सिन. अभी थ्रोम्बोक्सिन ये भी नाम हमने सुना रहेगा. कहा? प्लेटलेट्स में. वेरी गुड. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट ईच एवरी डिटेल. सो हिस्टामाइन जो है सिंथेसाइज बाय द मस्ट सेल. ये किससे प्रोड्यूस होगा? मस्ट सेल उसको प्रोड्यूस करेगी. मस्त सेल नहीं है, मस्ट सेल है जो एलर्जिक रिएक्शन में होती है. इन अ टिश्यूज एंड द बेसोफिल. कहा होगी? इन टिश्यूज एंड बेसोफिल. ओके, बेसोफिल सिक्रीट करेगा. बेसोफिल भी क्या आता है? एलर्जिक रिएक्शंस में
ओके, रिलीज टू रिस्पॉन्स द इन्फ्लामेशन। तो ये रिलीज कब होंगे? रिलीज इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। सूजन हो गई है तो ये इन्फ्लामेशन। ओके, then increase the capillary permeability. Increase what? They increase the capability, not capability, I'm so sorry, it's a capillary permeability. What is capillary permeability? Permeability. ओके, एंड डायलेशन। तो अगर ये ब्लड वेसल है, आगे जाके ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होगी, कैपिलरी बेड्स बोलेंगे इसको। ओके, और जब ये हिस्टामिन सिक्रीट होगा तो यहाँ से एंट्री मिलेगी अदर सेल्स को, जो फाइगोसाइटिक सेल है। कोई भी अगर समझो ये यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, ओके, कोई माइक्रोब्स आ गए, तो जो मोनोसाइट्स है या फिर हिस्टामाइन इज एक्ट लाइक अलार्मिंग सिस्टम। ठीक है, अब हिस्टामाइन हो रहा है तो चोर आ रहा है, चोर आ रहा है, तो चोर को अंदर जाने के लिए जगह तो चाहिए। तो जगह कौन देगा? ये कैपिलरी परमियाबिलिटी इंक्रीज करेगा, हिस्टामाइन अलार्म की तरह काम करेगा, और ये डब्ल्यूबीसीज मोनोसाइट्स, ओके, ये अंदर चले जाएंगे। कहा? जहाँ पे इन्फेक्शन है वहां पे। तो ये हिस्टामाइन अलार्मिंग सिस्टम की तरह काम करता है, सेल से सिक्रीट होता है, और ये कैपिलरी परमियाबिलिटी को इंक्रीज करता है और डायलेशन भी करता है। देन ल्यूकोट्राइन्स के बारे में हमने बात की। तो व्हाट आर द ल्यूकोट्राइन्स? रिलीज फ्रॉम द मस्ट सेल्स ओनली, दे आर आल्सो सिक्रेटेड बाय मस्ट सेल ओनली, assist in a promoting allergic response. So can I say leukotrienes are assistants in allergic? तो मस्ट से ये जो हिस्टामाइन है वो एलर्जी के टाइम सीक्रेट होगा एज अ अलार्मिंग। ओके, ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे? उसके असिस्टेंसेस को हेल्प करने आएंगे, एंड दे रिस्पॉन्स और दे कॉज दी वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करेंगे? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो डायलेशन, देखो यहाँ पे डायलेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ हिस्टामिन। तो डायलेशन का अपोजिट क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्शन, जो कौन करेंगे? ल्यूकोट्राइन्स करेंगे। दे अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। दे अट्रैक्ट करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? फैगोसाइटिस का है, और किल करेंगे जो भी है। ओके, न्यूट्रोफिल्स उसको किल करेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स को कौन बुलाता है? ल्यूकोट्राइन्स। ओके, और हिस्टामाइन कौन सिक्रीट करता है? मस्ट सेल सिक्रीट करता है। तो कैन आई से दिस आर द ल्यूकोट्राइन्स ऑफ असिस्टेंस ऑफ द mast cell. This point is very much clear. Now they attract the neutrophils to the site of inflammation. कौन करेंगे? ल्यूकोट्राइन्स करेंगे इन अ लार्ज क्वांटिटी ना रूमेटॉइड जॉइंट्स। मोस्टली न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कहाँ करेंगे? रूमेटॉइड जॉइंट्स। ओके, जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे वो अट्रैक्ट मोस्टली करेंगे। देन किसकी बात आती है? साइटोकाइंस की बात आती है। साइटोकाइंस क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। दे आर व्हाट? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। ओके, दे आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, तो दे हेल्प इन अ डिफेंस मैकेनिज्म। कहाँ करेंगे काम? दे हेल्प इन अ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेंगे। एलिसिटी इफेक्ट ऑन द सेम सेल एंड नियर बाय सेल। तो अगर समझो यहाँ पे इफ व्हाट वी कैन से इन्फेक्शियस सेल है, तो ये बाकी के सेल्स है आजू बाजू वाले, तो ये जो साइटोकाइंस है कि इसको तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, ट्राई करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म का, और जो बाजू के सेल है उनको भी क्या करेंगे? बचाएंगे। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इलिसिट द इफेक्ट्स ऑन, द इलिसिट द इफेक्ट ऑन cell and nearby cell. Okay, important cytokines are interleukins and interferons. So cytokinins क्या है? interleukins है and interferons है। Okay, this point is very very important. Interleukins and interferon. ना थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन कहाँ काम करेंगे? थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसाइज बाय द प्लेटलेट्स। ये क्या करेंगे? ये सिंथेसाइज, ये किससे सिंथेसाइज होंगे? चलो इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ये सिंथेसाइज्ड बाय
platelets. Okay, first of all. Then second, causes the vasoconstriction. क्यों भाई vasoconstriction करेंगे? चलो मुझे बोलो ये चीज, अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट का फॉर्म करेंगे, तो क्लॉट होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को, देखो अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो ब्लड ज़्यादा ऊज आउट होगा। यही जो जहाँ से ब्लड बाहर है उसको छोटा करेंगे तो ब्लड कम बाहर आएगा। तो ये आपका क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्शन है। तो ये कौन करेगा? थ्रोम्बोक्सिनेस करेंगे। एंड प्लेटलेट को क्लॉक फॉर्म करने के लिए वहां कौन बुलाएगा? थ्रोम्बोक्सिनेस बुलाएगा। सो कैन आई से दैट ब्लड क्लॉटिंग का सबसे स्टार्टिंग वाला काम थ्रोम्बोक्सिनेस करता है। ओके, इट प्रोसेस, so can I say that it contribute to blood clotting mechanism. ओके, तो ये वहां पे हेल्प करेगा। नाउ we have talked about this so much. Now let's go ahead and let's talk about the human endocrine system. We are going to talk about the human endocrine system in detail now. So human endocrine system. ओके, सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, राइट? यस और नो? ओके, तो ये हाइपोथैलेमस है, वहां से देखो ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट प्रॉपर्ली कि ब्लड वेसल्स आएंगे यहाँ से। ओके, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इसको बोलेंगे। एंड यहाँ से आपके आ जाएंगे न्यूरॉन्स। इसके एक्सोनल एंड कहाँ रहेंगे? Okay, let me draw with yellow part so you'll understand. This is neurons. इसके एक्सोनल एंड यहाँ पे रहेंगे। Okay, so let's talk about the pituitary gland. Pituitary gland is also called as a master gland. So जो pituitary gland है is also called as a master body. It's also pituitary को क्या बोलेंगे? Pituitary को बोलेंगे मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है, बिकॉज हाइपोथैलेमस से आ रहा है, राइट? ओके, जस्ट अ पार्ट। सो इस लाइंग इन हाइपोफाइसियल फोसा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लाई होगी? हाइपोफाइसियल फोसा में रहेगा। ओके, और उसको ही बोलते हैं सेला टर्सिका। क्यों सेला टर्सिका बोलते हैं? आप अगर आपने देखा रहेगा तो घोड़े के ऊपर जो सीट होती है वो कैसे होती है? थोड़ी सी ऐसे होती है जहाँ पे बैठने के लिए होगा, राइट? तो सेम ऐसा ही एक डिप्रेशन होता है ब्रेन में जहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड विराजमान होती है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई सेला टर्सिका और हाइपोफाइसियल फोसा उसको बोलते हैं। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ना टू पार्ट्स है, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूरो हाइपो न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, एंड जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वो कौन सी पिट्यूटरी है? दैट इज योर पोस्टीरियर। और जो एंटीरियर है उसको ही क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, सो ये देखो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से एंट्री है, राइट? दैट्स कॉल्ड आर्टेरियल फ्लो। आर्टेरियल ब्लड फ्लो वहां पे होगा, और ये होगा वेनस ब्लड फ्लो। चलो, पोर्टल सिस्टम क्या होता है? डायरेक्टली अगर कोई भी वेनस ब्लड हार्ट के पास जाना चाहिए और पंप होके दूसरे ऑर्गन्स में जाना चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए। बट पोर्टल सिस्टम में होता क्या है? बिफोर हार्ट एक ऑर्गन आ जाता है, उस ऑर्गन के पास पहले ब्लड फ्लो जाता है, उसके बाद वो जाएगा हार्ट में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको कुछ सिक्रीशंस रहेंगे, कुछ वेस्ट रहेगा या कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, राइट? तो
वो हमें निकालने हैं, दैट इज द सिस्टम और दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पोर्टल सिस्टम। तो ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, तो ब्लड डायरेक्टली क्यों हार्ट में जाना, राइट तो ये हाइपोफाइसियल में जाएगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, so adenohypophysis form from the embryonic buccal cavity। जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो यहाँ पे आप नोट डाउन करो। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो एम्ब्रियोनिक बक्कल कैविटी से बना है। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक बक्कल कैविटी से बना है और उसको ही क्या बोलते हैं, रातकेस पाउच। क्या बोलेंगे, रातकेस पाउच। उसको बोलेंगे रातकेस पाउच, एम्ब्रियोनिक बक्कल कैविटी को ही। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस डेवलप फ्रॉम डायनसेफेलॉन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो डेवलप्ड हुआ है, डेवलप फ्रॉम डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या है, ब्रेन का पार्ट है। ओके, अबाउट साइड। नाउ ये तो हमने पढ़ दिया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, दैट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे हम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसके बारे में हमने बात की थी, राइट। सो दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल system। Okay, now we talk about the pituitary gland। So when you talk about the pituitary gland, it's an anatomical connection between the nervous, endocrine and circulatory system। जो ये pituitary gland है वो क्या सर्व करता है, एक कनेक्शन सर्व करता है। So इस anatomical connection, can you talk about anatomical connection? Connection between whom? Connection between the nervous, first nervous होगा, उसके बाद होगा एंडोक्राइन, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स है जिसका इफेक्ट है, एंड लास्ट वन इज सर्कुलेशन। तीन चीजों पे इसका इफेक्ट होगा। एनाटॉमिकल कनेक्शन इसको इसलिए बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर पिट्यूटरी वी आर गोइंग टू स्टडी दी, वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टडी द पैराथायरॉयड। वी आर गोइंग टू स्टडी द पैराथायरॉयड। अब पैराथायरॉयड के बारे में बात करेंगे तो दिस आर द फोर स्मॉल नोड्यूल्स। ये क्या है, फोर स्मॉल नोड्यूल्स। दे आर व्हाट, फोर स्मॉल नोड्यूल्स है। चलो चलो जूम आउट कर देते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो थायराइड क्या है, फोर स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ अ टिश्यू एम्बेडेड इन द बैक साइड ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। किसके बैक में होता है, थायराइड के ग्लैंड के बैक में होता है पैराथायरॉयड, नेक में। इट डेवलप एज अ एपिथेलियल बर्ड फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ पेयर्स ऑफ फेरेंजियल पाउच। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दे आर डेवलप एज अ एपिथेलियल बर्ड, एपिथेलियल एपिथेलियल बर्ड एज अ डेवलप। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एपिथेलियल बर्ड जैसा होता है। और जो एपिथेलियल बर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ, थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ pharyngeal pouch, pharyngeal pouch से होता है। Okay, this point is very much clear, that contain the chief principal cell which secrete the hormones। Okay, and oxyphil eosinophil cell which are considered as a degenerated sheaf cell। तो यहाँ पे कौन से सेल्स रहेंगे, sheaf cells रहेंगे। ओके, मोस्टली कौन से है, eosinophil है, eosinophils रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, which are considered as a chief cells। It hormones are called parathormones and कॉलिप्स हार्मोन। तो ये जो पैराथायरॉयड है ये क्या सिक्रीट करेंगे, पैराथार्मोन, और उसको ही हमने नाम दिया है कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। ओके, तो ये है पैराथायरॉयड के बारे में। Then human and मतलब what we can say, after parathyroid in human endocrine system में ग्लैंड आती है एड्रेनल ग्लैंड।
कौन सी ग्लैंड आएगी अभी हमारे पास? एड्रिनल। तो ये एड्रिनल के बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे. सो लेट्स टेक अ वाइट पेन टू राइट दिस. एड्रिनल ग्लैंड. जो ये एड्रिनल ग्लैंड है दैट इज पर्च ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. तो अगर ये किडनी का स्ट्रक्चर है तो ये जो नॉच ऊपर दिखाई दे रही है ट्रायंगुलर शेप, ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है. तो पर्च ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज कंसिस्ट ऑफ द इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स. तो ये जो उसका पार्ट बनाया है, कॉर्टेक्स आउटसाइड है, इनसाइड क्या है? मेडुला है. ओके. वेर एज ये क्या है? देखो देखो क्या है, इनर मेडुला एंड द आउटर कॉर्टेक्स ईच ऑफ विच रिलीजेस सेवरल हार्मोन्स. तो मेडुला भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, कॉर्टेक्स भी हार्मोन सिक्रेट करता है. इट्स कॉर्टेक्स रीजन इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन. जो ये कॉर्टेक्स है ये क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन में है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड जो मेडुला जो है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. अभी एक ही इसमें दो दो ओरिजिन है यहाँ पे. देखो मेडुला एक्टोडर्मल, कॉर्टेक्स मीजोडर्मल ओरिजिन है. जो मेडुला है वो सिक्रीट करते हैं इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी हार्मोन कौन से? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, राइट. इमरजेंसी दैट इज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स. ओके. दैट इज मोस्टली द एड्रेनालिन and noradrenaline. Okay. Now after that we are going to study about the pancreas. अभी पैनक्रियाज में क्या पढ़ना है भाई? इट्स अ हेट्रो मीन्स क्या? ड्यूअल है. हार्मोन भी सिक्रेट करेगी और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है. सो इट्स अ ड्यूअल पर्पस ऑर्गन. तो पैनक्रियाज क्या है आपका? ड्यूअल पर्पस हार्मोन्स है आपका. ठीक है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस व्हाट? हार्मोन्स. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगा. होलोक्राइन ग्लैंड है क्या? नहीं है, एक्सेप्शन है उसके लिए. Whereas the islet of Langerhans perform the endocrine function. मतलब क्या है? देखो एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और उसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है. तो जो एक्सोक्राइन है वो क्या करता है? इट्स एक्नी. ओके. इट्स एक्नी. इसमें क्या हैगा? एक्नी जो है वो एक्सो की तरह काम करेगी. एंड द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो क्या आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज अ ड्यूअल पर्पस. दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके. नाउ we are going further and we are going to talk about something very important, that is, okay, here is a place so I can write here. Yeah. So next we are going to talk about the pineal gland. We are going to talk about the pineal gland. जो ये pineal gland है it is also called a epiphysis. क्या बोलते हैं इसको? epiphysis उसको बोलते हैं. क्या है? epiphysis. इट्स लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन. कहाँ है ये? लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ होम? फोरब्रेन. ओके. डोर्सल साइड में ये विराजमान है. इट इज स्टॉक स्मॉल राउंडेड एंड अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. ये कौन सी है? रेडिश ब्राउन कलर की है. ओके. स्टॉक है. स्टॉक का मतलब क्या? ये जो अगर ये ग्लैंड है तो ये जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे स्टॉक. हैंगिंग, हैंगिंग के लिए यूज होता है, राइट. इट्स अ वेरी स्मॉल वन एंड द राउंडेड वन एंड राउंडेड वन. ओके. इट सिक्रेट व्हाट? मेलेटोनिन. ये क्या सिक्रेट करेगी? पीनियल ग्लैंड सिक्रेट क्या करेगी? मेलेटोनिन को प्रिक्रेट करेगी. अब ये मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन इज व्हाट? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन. मेलेटोनिन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन है. और जो मेलाटोनिन है, देखो मेलानिन इज अ स्किन पिगमेंटेशन. मेलाटोनिन इज अ आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको मेंटेन करता है, सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करता है. अगर ये पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपका स्लीप वेक साइकिल, जो स्लीप वेक साइकिल है
वो डिस्टर्ब होगा, उसको वो कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेलाटोनिन प्रॉपर नहीं है तो, राइट। इसलिए जेट लैग भी लग जाता है, राइट। ओके, नाउ पीनियल बॉडी और क्या सीक्रेट करते हैं, सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि हाँ मेलाटोनिन सीक्रेटेड बाय ओनली पीनियल ग्लैंड, नहीं, उसके बाद वो हिस्टामिन और सोमैटोस्टैटिन भी प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या था, एलर्जिक हार्मोन था, राइट, यस। एंड सोमैटोस्टैटिन, और क्या सीक्रेट करती है, सोमैटोस्टैटिन को सीक्रेट करती है पीनियल ग्लैंड, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ आफ्टर दैट देखो, जो हमारा कौन सा ग्लैंड था, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड भी तो है मौजूद, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, it contains the neurosecretory cells. Contains what? It contains neurosecretory cells. उसके पास neurosecretory cells है, that is nuclei। मतलब देखो, ये अगर मैंने न्यूरॉन को ड्रॉ किया, ठीक है, ये उसके एक्सोनल पार्ट रहेंगे, तो ये जो एंड है ना, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ओके, पोस्टीरियर और एंटीरियर देखो, हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं। ये कौन सा था, पोस्टीरियर था, देखो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, राइट, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपका ये हाइपोथैलेमस है, तो कंटेंस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रहेंगे उसके पास, दैट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स टू कंट्रोल द पिट्यूटरी फंक्शन। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल किसको करेगा, पिट्यूटरी को करेगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स कितने सिक्रीट करने, कितने नहीं करने, कौन डिसाइड करेगा, मास्टर ऑफ मास्टर इज द हाइपोथैलेमस। इट सिंथेसाइजेस बोथ ट्रॉपिक एंड इनिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा, ट्रॉपिक एंड इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन, जैसे कि प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा, तो प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन भी सिक्रेट होगा। ओके, जैसे कि इस्ट्रोजन, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको, पर मैं बोल रहा हूँ इस्ट्रोजन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, पिट्यूटरी के पास नहीं जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा फिर इस्ट्रोजन इनिबिटरी, ओके, एलएच और एफएसएच को कम करेगा, तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो कंट्रोल हो सकता है उससे, राइट। सो ये सब चीज़ें, तो हाइपोथैलेमस एक्ट लाइक अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी थायराइड ग्लैंड। कौन सी बात करेंगे हम लोग, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, T3 एंड T4, right, contains the follicles which synthesize the hormones, secrete the three hormones, that is T3, T4 and calcitonin, calcitonin। ओके, नाउ माय डियर बच्चों, आपने अगर एक नोटिस किया रहेगा, व्हाइल आई एम राइटिंग आई हैव रिटन समथिंग T3 T4 ओवर हियर एज वेल। तो आप अगर देखोगे तो वहाँ पे, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट, चलो हम बाद में देखेंगे उसको। आई जस्ट थॉट कि आपको मैं बोल दूँ। तो थायराइड ग्लैंड क्या है, T3 एंड T4 कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करता है। देन आपका आएगा थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड है, उसके बाद क्या आएगा आपका, थाइमस ग्लैंड। जो ये थाइमस ग्लैंड रहेगा, इट इज द एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। क्या है इसका, एंडोडर्मल ओरिजिन है। ओके, किसका, थाइमस ग्लैंड का। So it develops from the epithelium of the outer part of the third gill pouch, lobular structure lying on the dorsal side of the heart and the aorta। तो thymus gland का है, lobular structure है thymus के बारे में। ओके, कंटेन्स द लिम्फॉइड टिश्यू, इसके पास क्या लेंगे, लिम्फॉइड। तो जो ये हार्ट चेम्बर रहेगा ना, उसके पास थाइमस, थाइमस इज अ बोन, राइट, उसके पीछे ये रहेगा। ओके, क्या रहेगा यहाँ पे, लोबियर स्ट्रक्चर लाइन और डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड अरोटा, कंटेन्स द लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यूज इसके पास रहेंगे, ठीक है। इट टेक्स पेट, और ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं, दैट टेक पार्ट इन अ प्रोलिफरेशन एंड अ मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। सो जो थाइमस है, टी लिम्फोसाइट्स, सो टी लिम्फ, देखो हमारे पास होते हैं बी लिम्फोसाइट्स
एंड सी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस मेडिएटेड लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे थाइमस में जाके और लिम्फोइड मतलब वहाँ पे फंक्शंस करेंगे। लिम्फोइड टिश्यूज जो है वो हमें मोस्टली डिफेंस मैकेनिज्म में पाया जाता है, राइट। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा वो थाइमस मेडिएटेड है, दैट्स व्हाई टी लिम्फोसाइट्स, ओके, फैगोसाइटोसिस करने के लिए। सो दे रिलीज द पेप्टाइड हार्मोन्स दैट आर रिफर टू एज अ थाइमोसिन। तो ये और कौन से हार्मोन सिक्रेट करेंगे? थाइमोसिन सिक्रेट करेंगे, ओके। दैट इज ह्यूमरल फैक्टर्स एंड आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। थाइमोसिन क्या है? इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम इंपॉर्टेंट है, ओके। देन अनर एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं मेल और फीमेल्स में। मेल में आएंगे टेस्टिस, फीमेल में आएंगे ओवरीज, ओके। सो इन केस ऑफ मेल, जो मेल गोनाड्स है दैट इज टेस्टिस, परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन। अभी जो क्या बोला था, ये एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी नहीं। सी दे हैव अ दे सिक्रेट हार्मोन्स आल्सो दे हैव अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, राइट। सो जो ये होंगे मेल गोनाड्स, okay, they perform the dual function, that is synthesize of sperm भी प्रोड्यूस करेंगे एंड रिलीज द हार्मोन प्लस रिलीज ऑफ हार्मोन्स करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ ओवरी फीमेल गोनाड, ये क्या है? फीमेल गोनाड, ओके। परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन आल्सो दे परफॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ ओवा। क्या करेंगे? ओवा का प्रोडक्शन करेंगे and along with that also release the hormone, okay. This point is very much clear to you, okay. Now मेजर हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। सो इसके लिए ना हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, सो प्लीज बेयर विथ मी। सो मेजर हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, सो कैन आई राइट दिस? मेजर हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो भी कौन से, चलो हम यहाँ पे देखेंगे ग्लैंड्स, किससे क्या सिक्रीट होता है। देन हम हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। देन उसका टाइप क्या है, प्रोटीनियस है, पेप्टाइड्स है कि क्या है, एंड उसका एक्शन क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सो फर्स्ट इज ग्लैंड इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होता है? फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का टाइप क्या है? इट इज अ पेप्टाइड एंड उसका हेल्प क्या है? मूव्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर अ स्टोरेज। मूव्स क्या करता है? मूव्स टू पोस्टीरियर। देखो ये तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, राइट, वो तो तब हेल्प होगा, लेकिन अभी ये स्टोर कहाँ हो रहा है? मूव्स इन अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर स्टोरेज, और जब इसका रिक्वायरमेंट रहेगा वो पिट्यूटरी से आ जाएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है, ओके। देन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? यूरिन में से पानी को बचाना, राइट, सोडियम को एब्जॉर्ब करना मैक्स टू मैक्स। ये कौन सा नेचर है इसका? पेप्टाइड नेचर है इसका। अगेन इट मूव्स टू दी पोस्टीरियर फॉर दी स्टोरेज। देन हाइपोथैलेमस और एक सीक्रेट करता है, दैट इज आरएच और आईएच, रेगुलेटरी हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सो कैन आई से दे प्रोड्यूस द रेगुलेटरी हार्मोन्स। देखो जिसके पीछे आर एच रहेगा दैट इज रेगुलेटरी, आर एच रहेगा तो इनिबिटरी हार्मोन्स, राइट। सो ऑफ हुज? ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑब्वियसली दे एक्ट ऑन होम? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वो काम करेंगे, इनिबिशन का काम करेंगे, स्टिमुलेशन का काम करेंगे, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। नाउ लेट्स मूव टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी जो हमारी पिट्यूटरी प्यारी सी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है,
पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दैट्स वाई देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को जो ऊपर है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड करेंगे। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करेगी जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नेचर क्या है? प्रोटीनियस नेचर है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट दी बॉडी ग्रोथ। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ को करेगा। करेक्ट। देन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। वो क्या है? प्रोटीन इन नेचर है और लैक्टेशन को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? लैक्टेशन को प्रमोट करेगा। देन एफएसएच, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि कौन सा नेचर है इसका? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है, ग्लाइकोप्रोटीन। दिस स्टिमुलेट अ फॉलिकल मैचुरेशन। वो क्या किसके फॉलिकल मैचुरेट करेंगे? टेल मी, इन फीमेल और मेल? इन फीमेल और मेल? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। ऑब्वियसली in both. Let's talk about that. So stimulate a follicle maturation. ये देखो यहाँ पे follicular follicular maturation का काम करेंगे and production of estrogen, and estrogen को increase करेंगे, production करेंगे। Stimulate a sperm production also, sperm production। चलो हमने बोला था ना दोनों में, तो कैसे आप बोलोगे तो एफएसएच तो सिर्फ फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, तो फीमेल्स में रहते हैं, तो मेल्स में क्या करता है एफएसएच? स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। देन ल्यूटिलाइजिंग, मतलब मेल में भी एफएसएच होता है, यस ऑब्वियसली, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इन दैट। देन एलएच, एलएच फॉर एलएच, एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शंस क्या है? सबसे पहले ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, एफएसएच की तरह। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये क्या करेगा? ट्रिगर्स दी ओवुलेशन। एलएच क्या करेगा? देखो एलएच सर्ज, ओवुलेशन 14 डे का पहले, 14 डे पे एलएच सर्ज हो जाता है, 13 से स्टार्ट होता है, तो वो ओवुलेशन करेगा, राइट? तो इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। वेरी गुड। एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करेगा एलएच, राइट, बाय द ओवरी, एंड प्रमोट द स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करेगा? स्पर्म प्रोडक्शन को भी प्रमोट करेगा। ओके, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का एलएच। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ टीएसएच। टीएसएच क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। दे आर इनटू पेप्टाइड इन नेचर। दे promotes the release of glucocorticoids and देखो, देखो थायराइड है ना, तो स्टिमुलेट क्या करेगा? T3 एंड T4 को सिक्रेट करेगा। एंड जो ACTH है, देखो ACTH दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि पेप्टाइड नेचर का है, वो सिक्रेट करेगा रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स along with androgen, along with androgen from adrenal gland. Okay, glucocorticoids. These are the hormones secreted by the pituitary glands. Okay, okay. बट यहाँ पे और एक हमें बात देखनी है, लेट मी टेल यू इन डिटेल। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिवाइड होती है टू में, राइट? हमने देखा था। यस और नो? वी हैव टॉक अबाउट दैट। सो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी रहती है, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर। एंटीरियर से ओनली टू, ऑक्सीटोसिन एंड एड्रेनालिन, राइट? सो पोस्टीरियर में भी है, लेकिन पोस्टीरियर में भी क्या होता है पता है? पोस्टीरियर में पार्स डिस्टालिस पार्ट होता है, पार्स डिस्टालिस होता है। पार्स डिस्टालिस में इतने सारे हार्मोन्स सिक्रेट होंगे, और पोस्टीरियर के बाद जो मिडिल पार्ट रहता है, देखो अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसका ये एंटीरियर पार्ट रहेगा, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट रहेगा। तो बीच में जो है दैट इज कॉल्ड पार्स, दैट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और एक हार्मोन वो सिक्रेट करता है दैट इज कॉल्ड एमएसएच। एमएसएच का फुल फॉर्म मेलेटोनोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
Okay, melatonin is hypothalamus. It is not secreted. MS, don't get confused with that. It is melanocyte. Okay, ये क्या है आपका पेप्टाइड इन नेचर है. और ये क्या है मेंटेनेंस ऑफ लिपिड कंटेंट इन बॉडी. क्या करेगा लिपिड कंटेंट मेंटेनेंस करेगा आपके. Okay, I hope everything is clear. I'm writing properly for you. Then let's talk about the thyroid gland. Let's talk about the thyroid gland. जो thyroid gland है, that is going to secrete a T3, that is triiodothyronine. It is amine in nature, right? The last one that we have studied, the last chemical composition. Increase the metabolism and the blood pressure. ये बीपी को इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, इट रेगुलेट द टिश्यू ग्रोथ क्या करेगा ये रेगुलेट करेगा. इसलिए देखो जिनके पास T3 T4 हाइपो और हाइपर होता है इनके पूरे बॉडी में इफेक्ट हो जाता है, राइट. सो इट रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ एंड 5 times मोर पोटेंट देन द T4. सो T3 क्या है मोर पोटेंट है. हाउ मच टाइम्स 5 times देन द T4. ओके. T4 is thyroxine. It is also amine in nature. It increase the metabolism. ये भी क्या करेगा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, रेगुलेट दी ब्लड प्रेशर को करेगा एंड रेगुलेट द टिश्यू ग्रोथ. दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन मोर पोटेंट कौन है आपका T3 है. तो दिस इज मोर पोटेंट. ओके मोर पोटेंट. T3 is more potent, 5 times more potent. Okay, and the last hormone secreted by the thyroid is a calcitonin. Let me write it properly. I don't know what happened to my brain. It's not writing properly. It's a calcitonin, and calcitonin is peptide in nature. Obviously, calcitonin carrying mostly calcium levels to uptake of the bone. कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा फ्रॉम बोन से. ठीक है. so these are all the hormones we talk about. Now moving to the next, we cover the thyroid. Now jumping on the we are jumping on the parathyroid gland. So which gland is here? Parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी? पैराथायरॉयड. और पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सा सीक्रेट करेंगे? पैराथायरॉयड हार्मोन. ओके. उसको ही क्या बोलते हैं? पैराथ हार्मोन और कॉलिप हार्मोन. हमने ये पढ़ा था, राइट. पैराथ हार्मोन और क्या बोलेंगे इसको? कॉलिप हार्मोन. ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. विच नेचर? पेप्टाइड. मोस्टली पेप्टाइड नेचर, राइट. इसलिए प्रोटीन का क्या था? ज्यादा प्रोटीनियस हार्मोन से, राइट. सो जो पैराथ हार्मोन है ये क्या करेगा? कैल्शियम लेवल इन ब्लड. देखो कैल्सिटोनिन जो है वो बोन से मेंटेनेंस कर रहा है. जो पैराथ हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल इन ब्लड को इंक्रीज कर रहा है. ओके. एक्शन ऑन द बोन. देन किडनीज एंड इंटेस्टाइन. इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा? किडनीज एंड इंटेस्टाइन का. देन क्या आता है हमारा प्यारा सा पैनक्रियाज, जो ड्यूअल फंक्शन में काम करेगा, राइट. पैनक्रियाज. जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा. क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन सिक्रेट करेगा. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. इंसुलिन मोस्टली अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. इट इज प्रोटीन इन नेचर. इट इज व्हाट? प्रोटीनियस इन नेचर. Okay, and obviously what is the function of insulin? You all know, reduce the blood sugar level. तो blood sugar level मेंटेन करेंगे. ओके. देन जो बी सेल है दैट इज ग्लूकागॉन. क्या सिक्रेट करेगा? ग्लूकागॉन बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस. वो क्या करेंगे? प्रोटीन इन नेचर. इट इज अ प्रोटीन इन नेचर.
इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ये क्या करेगा, शुगर इंक्रीज इन ब्लड, ओके, इंक्रीज इन व्हाट, ब्लड. तो कैन आई से दैट इंसुलिन एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ, किसका दे रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आर व्हाट, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक. क्या हो रहा है इस पे, इनको प्रॉपर नहीं लिख रहा है यार, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू राइट इट प्रॉपर्ली. दे शो व्हाट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एक दूसरे के अपोनेंट है ये, राइट, इन शॉर्ट. देन एड्रिनल ग्लैंड, हु कम्स इनटू पिक्चर नाउ, एड्रिनल ग्लैंड. ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या सिक्रेट करेगा, लेट्स सी, एपिनेफ्रिन, और उसको ही क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन सिक्रेट करेगा. इसको ही बोलते हैं हम लोग एड्रेनालिन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन. किससे बना हुआ है, अमाइन से बना हुआ है. इट अफेक्ट द पीएनएस, मोस्टली क्या करेगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आइदर बाय स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग इट, इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, पीएनएस को इफेक्ट करेगा. देन हमारा रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा, बिकॉज हम फ्लाइट और फाइट मोड में रहेंगे. हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. देन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोमोट करेगा. देन नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसको ही क्या बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन. अब ये अपोजिट इफेक्ट करेगा, क्या लगता है आपको ये अपोजिट इफेक्ट करेगा, लेट्स स्टडी. स्ट्रेस हार्मोन, ये कौन सा है, स्ट्रेस हार्मोन है. इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. हार्ट रेट एंड ग्लूकोज लेवल आल्सो इंक्रीज, तो ग्लूकोज जो लेवल है इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो इट इज नॉट एंटागोनिस्टिक, ये दोनों फ्लाइट एंड फाइट मोड में काम करेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी, we are going to talk about the okay, it's visible for you, okay, let's go for the, now we are talking about the adrenal cortex. तो adrenal cortex में, adrenal medulla में हमने देखा एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन में. अभी हम बात करेंगे, तो can I say that this point is very much clear to you. I wanted to write here, जो adrenal gland है उसका adrenal medulla, जो medulla part है, medulla part हमने क्या देखा था, emergency हार्मोन सिक्रेट करेंगे, राइट, emergency हार्मोन सिक्रेट करेंगे. तो इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से है, एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, जो अमाइन इन नेचर है, जो क्या था, मेडुल्ला. अभी हम बात करेंगे कॉर्टेक्स, किसमें, किसका कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एड्रिनल की कार, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है उसकी बात कर रहे हैं. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबसे पहले कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये स्टीरॉयड इन नेचर है, क्या है, स्टीरॉयड इन नेचर है. और ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये कब प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग टर्म, जब स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होगा तो ये रहेगा. रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेंगे, उसको ये रिस्पॉन्स करेगा, कम करने की कोशिश करेगा. ब्लड वॉल्यूम मेंटेनेंस में भी ये काम करेगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन, okay, and it's also helpful in a immune suppress. Okay, so glucocorticoids का हमें steroids है. Then after that we come into picture that who we come into mineralocorticoids. ये जो mineralocorticoids है ये भी क्या है, स्टीरॉयड है. ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में काम आएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में काम आएगा. रिस्पॉन्स टू द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर मेंटेनेंस सेम ही है, राइट, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस. एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ऑफ द किडनी, ये सबसे इसका मेन फंक्शन है मिनरल नार्कोटिक्स का, क्या, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. जो कि लूप ऑफ हेनले, नो लास्ट, व्हाट इज आफ्टर लूप ऑफ हेनले हु कम, पीसीटी, राइट, पीसीटी
लूप ऑफ इनलेट डीसीटी, तो ये डीसीटी के ऊपर काम करेगा। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज, उसको ही क्या बोलते हैं, अल्डोस्टेरॉन, जो रॉस मैकेनिज्म में काम आएगा, रास में काम आएगा, राइट। या और फिर हार्ट एनएफ सीक्रेट करेगा। ओके, दैट विल सी लेटर ऑन, बट आई जस्ट गिविंग द हिंट। नाउ लेट्स गो फॉर नाउ गोनाड्स, वी नो दैट गोनाड्स में जो गोनाड्स रहेंगे उसमें मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड। मेल गोनाड में क्या रहेगा, टेस्टिस रहेंगे, राइट। टेस्टिस क्या, एंड्रोजन, टेस्टिस क्या सिक्रेट करेंगे, एंड्रोजन को सिक्रेट करेंगे। एंड्रोजन मतलब कौन, टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ये फॉलो करेगा। ये क्या है, स्टीरॉयड इन नेचर है। ओके, ये कहाँ काम करेगा, स्पर्म मैचुरेशन और स्पर्म प्रोडक्शन में काम करेगा, राइट। ओवरीज जो है वो क्या करेंगे, इस्ट्रोजन, ओके, इस्ट्रोजन को, ओके, ये स्टेरॉइड, ऑल आर स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली। अब ये काम काम करेंगे, GnRH, what is GnRH? Growth hormone. So stimulate hypothalamus to release the growth hormone before ovulation. Before ovulation, ये important point है, okay, and maintains the follicular growth. Follicular growth को maintain करेंगे. So GnRH, that is GnRH, that is growth regulating hormone stimulated by hypothalamus, okay, before the ovulation, that is a point in ovaries. Then progesterone, estrogen और progesterone are secreted by ovaries, right। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, ओके। यूट्रस वॉल को थिक रखेगा, यूट्रस वॉल थिकनिंग में काम आएगा, और इनिबिटर रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन को डिक्रीज करेगा, राइट। एस्ट्रोजन, तो whenever the pregnancy is there or the gestation period is there or after the pregnancy progesterone is there in body, estrogen को वो stop करता है, not that much estrogen रहेगा, तो उससे क्या होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड को बढ़ाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नाउ द लास्ट वन, दैट इज पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेगी, मेलाटोनिन को सिक्रेट करेगी। और मेलाटोनिन कौन सा नेचर है, अमाइन का नेचर है, और ये रिदम, विच रिदम, सर्केडियम रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियम रिदम को मेंटेन करेगा। और सर्केडियम रिदम, योर स्लीप एंड वेक साइकिल। देन थाइमस, जो थाइमस ग्लैंड है हार्ट के एग्जैक्टली सामने जो प्रेजेंट होता है, वो सिक्रेट करेगा थाइमोसिन को। और thymosin, it is a peptide in nature and it is development of T lymphocytes. T lymphocyte, तो हमने टेबुलर फॉर्म में अच्छे से प्रैक्टिस की है। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द हार्मोन्स हियर that we have started. Okay, now we are going to talk about the mechanism of the action of hormones. So for that I need a thoda zoom out, so let me write it for you. Now which topic we are going to talk about? Okay, so here is a place. I'm going to use that place. Okay, so let's talk about this here. That is mechanism of hormone action. What we are going to talk about? Mechanism of hormone action. चलो इसके बारे में हम बात करते हैं in detail. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में हम अभी बात करेंगे, चलो करते हैं। सो हार्मोन्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। तो हार्मोन क्या है, हार्मोन्स are two types. One is water soluble and one is lipid soluble. तो ये लिपिड soluble होंगे तो उनका मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा, और जो वाटर soluble रहेंगे इनका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ये चीज़ हमें पता चली है इससे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जो वाटर soluble है वो है अमाइनो, पेप्टाइड एंड प्रोटीन।
जो वाटर सॉल्यूबल है, जो वाटर सॉल्यूबल है उस कैटेगरी में कौन आते हैं? अमाइंस, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स आते हैं। एंड ऑब्वियसली जो लिपिड सॉल्युबल है उसमें क्या आएंगे? आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स आएंगे। स्टेरॉयड हार्मोन्स आ जाएंगे आपके पूरे के पूरे यहाँ पे। सो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स रिक्वायर अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। जो वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर सॉल्युबल है, व्हाई? बिकॉज जो लिपिड सॉल्युबल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज अ बाइलेयर लिपिड, ठीक है। तो ये स्टेरॉयड के तो फ्रेंड बन गए, तो स्टेरॉयड को अंदर क्रॉस करने इजी हो जाएगा। पर जो वाटर सॉल्युबल है, अमाइनो, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, उसको लगेगा कैरियर, उसके एनिमीज है, क्योंकि वो क्रॉस नहीं करने देंगे बाय लेयर, राइट। ये जो बाय लेयर है लिपिड्स का, राइट, ये जो लेयर की बात करते हैं हम उसके बारे में बात करें, तो जो वाटर सॉल्युबल है उसको थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। सो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स रिक्वायर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, क्या रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कैरियर के लिए? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स रहेंगे, करेक्ट। एंड जनरेट द सेकेंड मैसेंजर, और ये क्या जनरेट करेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर को, मतलब ये खुद नहीं जा सकते अंदर, राइट। तो ये क्या करेंगे? समझो ये आपका वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है, ठीक है। ये बेचारा इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको जाके मैसेज करेगा फर्स्ट में कि मैं तो अंदर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मैसेज है, तू अंदर भेज दे। तो ये जो है वो अंदर चला जाएगा। तो डोंट यू थिंक सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी? तो ये सेकेंडरी मैसेज को जनरेट करेगा, क्योंकि ये वाइट तो अंदर नहीं आ रहा है, उसकी एंट्री तो है नहीं, देर इज नो एंट्री ऑफ दिस वाइट। तो ये सेकेंडरी मैसेज को जनरेट करेगा। सो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स रिक्वायर एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर, दैट इज, और सेकेंडरी जो मैसेंजर है दैट इज कॉल्ड CAMP, साइक्लिक एमपी भी उसको बोलते हैं, राइट, फॉर कैरिंग द अदर एक्टिविटी, कैस्केड मैकेनिज्म। So lipid soluble hormones can pass through the cell membranes and directly enter the cell. जो लिपिड है उनको तो डायरेक्ट एंट्री है, बिकॉज ये जो बायलेयर बना है वो लिपिड से ही बना है, तो लिपिड को क्या है? डायरेक्ट एंट्री है, तो उनका कुछ काम नहीं है, फटाफट काम हो जाता है। ओके, चलो लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। ओके, तो हम बात कर रहे हैं स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन थ्रू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अभी ये क्या बात हुई? जो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स है उनके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं है, बिकॉज वो तो सॉल्यूबल है, राइट। उनके पास क्या है? इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर है, तो इनका काम तो इजी है। देखो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, ये आउटसाइड द बॉडी। अभी ये जो लेयर है लिपिड बायलेयर से बना है, राइट। तो इसको क्रॉस करना इनके लिए क्या है? वेरी इजी है। देखो ये लिपिड्स बायलर में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट गोना ड्रॉ ऑल ओवर, यू जस्ट, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एस्ट्रोजन इसको क्रॉस डायरेक्टली कर जाएगा, ये क्रॉस करके जाएगा कहाँ? ठीक है, ये एक यूटेराइन वॉल है, ओके, और ये बायलर है उसका, मतलब वॉल है। तो ये जो अंदर क्रॉस किया, तो फर्स्ट ये क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर। किस रिसेप्टर को बाइंड करेगा? इंट्रासेल्युलर, जो कि अंदर की तरफ है। अंदर कहाँ पे है? अंदर कहाँ पे? देखो, स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर टू फॉर्म द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो ये अंदर की तरफ, ये जो एस्ट्रोजन है, लेट्स मी ड्रॉ लाइक एस्ट्रोजन लाइक दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये अंदर जाके किसको बाइंड हो गया? रिसेप्टर को। तो ये क्या फॉर्म करेगा? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अभी ये कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो चुका है, तो अभी ये जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कहाँ जाएगा? बाइंड करेगा, इट्स बाइंड, ये कहाँ हो रहा है? ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, राइट, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है सब कुछ। तो बाइंड टू व्हाट? इट बाइंड टू दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करेगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करेगा, ये कहाँ बाइंड हो जाएगा? डीएनए को बाइंड हो जाएगा। वंस इट बाइंड टू दी डीएनए, ऑब्वियसली जो डीएनए है
यहाँ पे वो बाइंड हो गया, राइट। अगर ये बाइंड हो रहा है तो पर्टिकुलर जीन इज एक्टिवेटेड, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर, ये देखो ये सेकेंड पॉइंट है आपका, ये थर्ड पॉइंट है, पर्टिकुलर जीन इज एक्टिवेटेड, राइट। अगर पर्टिकुलर जीन एक्टिवेटेड हो गया है, डीएनए को ये बाइंड हो चुका है, अभी क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, लाइक टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर इलिसिटेड। तो इसमें देखो क्या होगा, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स क्या हो गए, लेट मी टेक अ लेजर, ये बाहर की तरफ था, अंदर वॉल के अंदर इसने ट्रैवल कर दिया, इट अटैच टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर को बोलेंगे हार्मोन कॉम्प्लेक्स, इट बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि डीएनए को डायरेक्टली बाइंड हो गया, डीएनए को बाइंड होने के बाद पर्टिकुलर जीन एक्टिवेट हुआ और वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ओके। दैट इज द स्टेरॉइड, क्योंकि डायरेक्टली है, कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है। वही अगर हम बात करेंगे, वही अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड हार्मोन की, पेप्टाइड हार्मोन क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। अगर ये वाटर सॉल्यूबल है, अगर ये वाटर सॉल्यूबल है तो इसके लिए कौन सा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर लगेगा, राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर लगेगा। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर देखो, दिस हार्मोन्स एक्ट एट द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल as a primary messenger and bind to the cell surface receptor forming the hormone receptor। तो बाहर की तरफ ही बाइंड हो रही है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। दिस मैकेनिज्म was discovered by सुदरलैंड, ये जो मैकेनिज्म है ये किसने लिया था, सुदरलैंड ने डिस्कवर किया था इन 1950 में, ओके। उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया था उनको। तो ये देखो अभी ये क्या है, लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल, ओके। सो आई नीड अ स्पेस फॉर दिस, सो जस्ट गिव मी 1 second, okay। So what happened, I want a space, right? Okay, so here I'm getting little space, okay। Let's draw here, our diagram will be here। जो ये क्या है आपका, ये सेल वॉल, उसमें क्या रहेंगे, दिस आर दी लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये क्या रहेगा, लिपिड बाइलेयर। तो वाटर सॉल्यूबल तो क्रॉस नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। तो जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन है वो क्या है, वो दैट इज वाटर सॉल्युबल, तो ये क्रॉस नहीं करेगा। बट इसके बीच में ना एक रिसेप्टर फाइंड है, तो ये एड्रेनालिन हार्मोन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो ये बाइंड होगा रिसेप्टर को, और जैसे ही रिसेप्टर को बाइंड होगा, what going to happen, the first one, the first step is binding of hormone to receptor, bind to receptor, ओके। ये रिसेप्टर को क्या हो गया, बाइंड हो गया, okay। Once it bind to the receptor, definitely what going to happen, now there is a formation of hormone receptor complex, hormone receptor HR, I'm writing HR, hormone receptor complex, which induces the release of GDP। तो क्या होगा, GDP रिलीज होगा टू फॉर्म दी G प्रोटीन, ओके। रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद जीडीपी सिक्रेट हुआ, जीडीपी क्या फॉर्म करेगा, जी प्रोटीन, विच रिलीजेस द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ये क्या करेगा, इसके अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होंगे वो रिलीज होंगे। तो अभी उसमें से जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट थे सिक्रेटेड बाय द जी प्रोटीन, इट एक्टिवेट द एडिनाइल साइक्लेस। देखो सेकेंडरी मैसेंजर बनाना ना, तो एडेनिल साइक्लेस को क्या करेंगे, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा अल्फा बीटा सब यूनिट्स के पास। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा, तो व्हाट गोइंग टू हैपन, दिस एक्टिवेट दी एडेनाइल साइक्लेस कैटालाइसिस। तो ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इट एक्टिवेट एडेनाइल साइक्लेस कैटलिस, कैटलिस को एक्टिवेट करेगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्मेशन ऑफ CMP फ्रॉम
एटीपी, तो ये एटीपी ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, सीएमपी बनेगा। अब ये सीएमपी बनने के बाद व्हाट गोइंग टू हैपन, दैट सीएमपी जो बना है, that is what happened, the CMP which is formed by the breaking of the ATP, it's bind to the inactivated protein kinase। ये क्या करेगा, जो inactivated protein kinase है, A, inactivated protein जो inactive फॉर्म में है, उसको क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, CMP बाइंड करेगा, और उसको क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। अगर उसने एक्टिवेट कर दिया है तो अभी व्हाट गोइंग टू हैपन, एवरी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एक्टिवेट्स इनएक्टिवेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इनएक्टिव थे वो अभी क्या बन गए हैं, एक्टिव बन चुके हैं। ओके, और जैसे ही ऐसे एक्टिव हो चुके हैं, सो एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन जो आपका 7 स्टेप यहाँ पे आएगा, वो क्या है आपका, देखो सब एक्टिवेट हो गया ना, तो 7 स्टेप दैट इज द लास्ट वन, एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन, एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन phosphorylates converts the glycogen converts the glycogen to glucose 1 phosphate which changes to the, अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा। एंड जैसे ही ये ग्लूकोज बनेगा, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ ट्रैवल करेगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ जाएगा। सो इसका मतलब देखो क्या है, हमने क्या किया, चलो लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। एड्रेनालिन से स्टार्ट किया था, एड्रेनालिन अंदर नहीं जा पा रहा था बेचारा, तो वो रिसेप्टर को बाइंड हो गया, क्या बनाया उसने, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, जीडीपी था जिसको जी प्रोटीन ने एक्टिवेट कर दिया, जीडीपी को जीडीपी ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन टूट गया अल्फा और बीटा में। जो अल्फा और बीटा सब यूनिट थे उन्होंने एक्टिवेट किया एडेनाइन साइक्लेस को। जो एडेनाइन साइक्लेस एक्टिवेट हो गया था उसने कैटेलाइज को एक्टिवेट कर दिया, और जो एटीपी था उसको ब्रेक डाउन करके सीएमपी बना दिया। सीएमपी बेचारा अभी क्या करेगा, बाइंड करेगा इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस को, जिसको क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा। जैसे ही इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो गया, ऑल कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, सी टू डी हो गया, डी टू ई हो गया। ओके, मतलब ये एक क्या है, एक के बाद एक के बाद एक चालू हो गए, तो उसको बोलेंगे कास्केड मैकेनिज्म। तो ये एक्टिवेट द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस जो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से, और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाएगा जो सेल के बाहर आएगा। तो कहने से द एड्रेनालाइन एक्चुअली क्या चाहता था, ग्लूकोज बाहर है, लेकिन उसको इतना कास्केड मैकेनिज्म थ्रू जाना पड़ा, क्योंकि कौन है ये बेचारा, वाटर सॉल्यूबल है, अंदर नहीं जा सकता, तो उसने क्या, किसका सहारा लिया, किसका सहारा लिया, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का सहारा लिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन well manner। Okay, so I try my best to make sure you understand in a simpler manner। Okay, so let's go further। Now we are going to talk about very important one, that is, everything is important right in this chapter, as I'm trying from first, sir ये भी important, ये भी important। Okay, we are about to finish, let's talk about that। a regulation of hormone action, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, regulation of hormone action, अभी हम रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। सो बोथ द हाइपो एक्टिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज। तो अगर हाइपो भी रहेगा या फिर हाइपर भी रहेगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, फिजियोलॉजिकल, व्हाट फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल abnormality।
abnormality को प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो हेंस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी नीड्स टू बी रेगुलेटेड। अगर ये रेगुलेट नहीं की, कम हुआ तो हाइपोसिक्रेशन, हायर हो गया तो हाइपर सिक्रेशन। तो वी हैव टू मेंटेन इट प्रॉपरली। अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या प्रोड्यूस होगा? एबनॉर्मलिटी विल बी प्रोड्यूस। तो उनको रेगुलेटेड करना चाहिए। तो रेगुलेशन के लिए how you can regulate this thing? So for regulation purpose we have a feedback mechanism. क्या है हमारे पास? फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। फीडबैक कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। ये जो फीडबैक है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये देखो कैसे काम करता है। सो फर्स्ट, फीडबैक कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। सो फीडबैक कंट्रोल बाय हार्मोन। इसमें देखो क्या पढ़ेंगे। द हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज समटाइम्स डिपेंडेंट अपॉन द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अदर ग्लैंड। सो जो हाइपोसिक्रेशन है, हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? लेस। जो लेस अमाउंट ऑफ सिक्रीशन है ये डिपेंडेंट होगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ग्लैंड। हार्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ग्लैंड। ठीक है, वो ही ग्लैंड ट्रिगर नहीं कर रही है, वो ग्लैंड ट्रिगर हो रही है किसी और से, तो उस टाइम हाइपोसिक्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड बाय द सम एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड प्रोड्यूसेस द रिलीजिंग हार्मोन। सो एग्जांपल इसमें क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस का रहेगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर किससे हो जाएगा? ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। और होने के बाद क्या करेगा? ये क्या करेगा? हार्मोन्स को रिलीज करेगा। हार्मोन्स को रिलीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये ट्रिगर ही नहीं हुआ तो ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा। अगर ये ट्रिगर ट्रिगर समझो लेस हो गया तो ये हार्मोन सिक्रेशन भी क्या होगा? लेस हो गया, राइट? तो ये ट्रिगर प्रॉपर हाइपोथैलेमस के पास नहीं आएगा तो ये सिक्रेशन ऑफ हार्मोन भी प्रॉपर नहीं होगा। So that is feedback control by the hormones. Okay, so that is the first thing. Now feedback control by the metabolites. The second is feedback system control by metabolite. Metabolite means intermediates. So let's see about this metabolites. What are the metabolites? The hyposecretion. Again, the hyposecretion. We talk about the hyposecretion. So hyposecretion of hormone हमने बात की कि ये हो रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं the level of metabolites also affect the secretion of certain hormones. For example, after a meal, खाना खाने के बाद क्या होता है? Obviously, tell me, tell me. Glucose level of the blood rises. ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ब्लड में राइज हो जाएगा, करेक्ट? विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन की एक्शन को। ठीक है, तो मील में क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं आएगा, ऑब्वियसली डाइजेशन के बाद आएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? इंसुलिन स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रीशन करने का। दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट एग्जांपल। नाउ द थर्ड वन इज फीडबैक कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। थर्ड इज दैट फीडबैक कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। अभी ये क्या कर रहा है देखो। इन दिस केस एन इमोशनल स्ट्रेस स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो इमोशनल स्ट्रेस होगा, बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस आते हैं लाइफ में, राइट? नॉट ओनली द ब्रेकअप बट रैंक नहीं आना प्रॉपर, या फिर कुछ चीज़ें नहीं होना, राइट? वो इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इमोशनल स्ट्रेस जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इमोशनल में कौन एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, इन टर्न सिंपैथेटिक नर्व ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट द एड्रिनल मेडुला टू प्रोड्यूस द एड्रेनालिन हार्मोन। तो इससे क्या होगा? एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा। अभी एड्रेनालिन क्या है? फ्लाइट और फाइट है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ये क्या कॉज करेगा? ऑब्वियसली
ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ओके, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, और रेस्पिरेशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज फीडबैक कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इमोशनल स्ट्रेस में। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। सो 3 feedback mechanism we have done. Now control of the hormonal action. अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंट्रोल ऑफ हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शन। अभी ये देखो ये कैसे कंट्रोल होगी, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। Hormones help to control many homeostatic mechanisms. Their production and release are generally controlled by the positive or negative feedback loop. तो ये positive and negative feedback loop के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ओके, इन पॉजिटिव फीडबैक hormones released by the one gland stimulate the other gland. So one gland secretes something, it stimulate other gland to secrete the hormone, okay, which further leads to even more significant change in the same direction. तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ से ट्रिगर हुआ, यहाँ से सिक्रीशन हुआ, करेक्ट। इट एक्ट एज अ सेल्फ एम्पलीफाइंग साइकिल, तो ये क्या होगा, सेल्फ एम्पलीफाइंग एम्पलीफाइंग साइकिल, सेम एम्पलीफाइंग साइकिल, दैट एक्सेलरेटिव प्रोसेस। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, दिस इज योर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक ग्लैंड है जो सेकेंड ग्लैंड को करता है सिक्रीट करने के लिए हार्मोन, तो ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एम्पलीफिकेशन करेगा, ओके, दैट लीड्स टू एम्पलीफिकेशन। बट अगर हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक के बारे में, क्या है हमारा सेकेंड नेगेटिव फीडबैक लूप। तो उसमें देखो क्या हो रहा है, इन दिस केस व्हाइल नेगेटिव फीडबैक लूप द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, ओके, बायोकेमिकल प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो खुद ही क्या करेगा, वन एक्ट लाइक अ इनिबिशन, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव में डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, बट समझो ए टू बी हो गया, बी ने प्रोड्यूस किया सी, तो सी जो है वो ए को स्टॉप करेगा टू प्रोड्यूस द बी, okay, so that is negative feedback mechanism. Okay, this point is very much clear to you. Yes, now we are going to talk about a nervous system, or we can say not nervous, sorry, endocrine disorders. Now we are going to talk about the endocrine disorder. This is a last part in this chapter. So we are going to talk about some disorders in detail. So let's talk about endocrine disorders. Endocrine disorder. Disorder मतलब क्या? They are not in properly order. That's why they are called disorder. So the first one we are going to talk about is the acromegaly. Acromegaly. भी acromegaly में होता क्या है? It is caused by the hypersecretion. GH का hyper secretion है ये, ओके, आफ्टर बोन ग्रोथ हैज स्टॉप। एक पॉइंट है यहाँ पे, आफ्टर बोन ग्रोथ हैज स्टॉप्ड, तब जाके ये एक्रोमेगैली में, ओके, वरना जाइगेंटिज्म हो जाएगा, ओके, बोन ग्रोथ, समझो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है बहुत ज्यादा और बोन ग्रोथ भी चालू है, तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा। बोन ग्रोथ रुकी है और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, हाइपर सिक्रीट हो रहा है, तब जाके क्या होगा, एक्रो
मैगली होगा। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड स्किन एंड टंग थिकनिंग। इसका क्या होता है, ये स्किन, इसमें क्या पाया जाता है, स्किन एंड टंग थिक हो जाता है। ओके, एनलार्ज ऑफ द हैंड्स, हैंड्स क्या हो जाएंगे, हैंड्स एनलार्ज हो जाएंगे, राइट, एक्रोमैगली। हैंड्स एंड व्हाट, फीट आल्सो गेट एनलार्ज। फेशियल फीचर्स बिकम कोर्स, फेशियल facial features become coarse, okay, in acromegaly. The second one we are going to talk about is Addison's disease. क्या होगा, Addison's disease. अभी ये Addison disease क्या प्रोड्यूस करेगा, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो इट इज कॉज ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. सो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ओके, डिक्रीज, यूजुअली ड्यू टू द ऑटो इम्यून रिएक्शन. ये क्या है, मोस्टली ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून है, खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इट्स सिम्टम्स इनक्लूड लॉस ऑफ वेट. फर्स्ट क्या होगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम. एंड एपेटाइट, वेट एंड एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा. फटीक, वीकनेस एंड कंप्लीट रीनल फेलियर, कंप्लीट रीनल फेल्यूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन एडिसन्स डिसीज में. आफ्टर एडिसन्स डिसीज we are going to talk about the third one that we have faced, that is Cushing syndrome. Third is what, Cushing syndrome. अब ये syndrome है, many symptoms together, that is syndrome, right? It caused due to the hyposecretion of hormones from adrenal gland. Hyposecretion of adrenal, ओके, वहां पे डिक्रीज था, कुशिंग सिंड्रोम. तो चलो अभी यहाँ देखो, इन दिस डिसीज फेस एंड बॉडी बिकम फैटर, फेस एंड बॉडी बिकम फैटर, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन है, राइट. सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन में लेस हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है. तो क्या प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या होगा, फेस एंड बॉडी बिकम्स फैटर, लॉस ऑफ मसल मास हो जाएगा और वीकनेस आ जाएगा, वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल, लॉस ऑफ मसल्स हो जाएगा, मसल मास हो जाएगा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रेटिनिज्म. क्या है, क्रेटिनिज्म है. अभी क्रेटिनिज्म में होता क्या है, चलो पहले पढ़ते हैं, देन वील मेक अ नोट. इट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म. इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, ठीक है. The retarded mental and physical development is associated with the hyposecretion of. तो इसमें क्या है, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, किसका, थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, ओके. द चाइल्ड रिसीव हार्मोन्स फ्रॉम द मदर बिफोर द बर्थ, सो अपीयर नॉर्मल एट द फर्स्ट. सो जो देखो क्या होता है ना, जब भी बच्चा होता है बिफोर द बर्थ हार्मोन्स प्रॉपर होते हैं क्योंकि मदर से मिल रहे हैं, लेकिन आफ्टर द बर्थ क्या हो जाएगा, बट आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू वीक्स, ओके, जैसे मदर से हट गया ना, मतलब प्लासेंटा उधर से हट गया तो कुछ नहीं मिलने वाला इसको अभी. सो बट विद इन द फ्यू वीक्स और मंथ्स इट बिकम्स एविडेंट, ओके. द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर रिटार्डेड, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्ड, ओके. It's a coarse, dry skin, poor abdominal muscle. Poor abdominal muscle will be there. I'm so sorry, guys. Now my handwriting is getting worse and worse because I'm continuously writing. Okay, so that is a, and it's also called, see, poor abdominal muscle tone and umbilical hernia. It's called umbilical हर्निया. व्हाट इज हर्निया, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन. तो जो क्रिटिनिज्म है उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया. बिकॉज व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, इट्स कॉल्ड अम्बिलिकल हर्निया बिकॉज आफ्टर द बर्थ
before the birth, when it's connected to the mother, receiving all the hormones properly. But once it detaches from the mother, placenta is now eliminated. Then it showing the effect that physical and mental retardation, muscle weakness is there, poor abdominal muscle mass is there. So that is called umbilical hernia. That is cretinism. Okay. Then let's talk about the fourth one or fifth one, that is diabetes insipidus. देखो insipidus इज अलग होता है, और डायबिटिस मिलेटस अलग होता है। तो इन केस ऑफ डायबिटिस इंसिपिडस यहाँ पे क्या होता है, एडीएच डेफिशिएंसी होता है, एडीएच डिक्रीज होता है। सो इट कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव थर्स्ट। थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगी प्यास, क्योंकि पानी रिटेन नहीं हो रहा है, सोडियम रिटेन नहीं हो रहा है। यूरिनेशन भी ज़्यादा लगेगी यहाँ पे, क्योंकि डीसीटी पे एल्डोस्टेरॉन काम ही नहीं कर रहा है, राइट। एंड कंस्टिपेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंस्टिपेशन हो जाएगा। दैट इज डायबिटिस इंसिपिडस। इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी होती है। और अभी हम बात करेंगे डायबिटिस मिलेटस के बारे में, जिसमें आपका इंसुलिन काम नहीं करता मोस्ट प्रोबेबली, राइट। इट इज कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन ही क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। ओके, इट कैन ऑफ टू टाइप। अभी डायबिटिस मिलेटस ना टाइप 1 और टाइप 2 की होती है। टाइप 1 और टाइप 2 की होती है। तो व्हाट इज देयर इन टाइप 1 एंड टाइप 2, लेट्स स्टडी अबाउट इट। टाइप 1 जो है ना, इट्स इंसुलिन डिपेंडेंट ID, let me write IDDM, that is insulin dependent diabetes mellitus। and जो type 2 है, it is NIDDM। N stands for non insulin dependent diabetes mellitus। तो टाइप 1 होगा वो इंसुलिन डिपेंड होगा, जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन का लेना देना थोड़ा कम है। ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर वाउंड हीलिंग। तो अभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, डायबिटीज में कैरेक्टर्स क्या होंगी, पुअर वाउंड हीलिंग। कुछ भी अगर लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉइजनिंग हो सकती है। अगर फूड के ऊपर कुछ लगा तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड, नॉट फूड, फूड। पुअर वाउंड हीलिंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज ज़्यादा पाए जाएंगे। Most glucose found in a urine in case of diabetes mellitus, fatigue and apathy. Fatigue hoga. Okay, these are the characteristics of mellitus. The last one, the disorder of this chapter that we're going to study is this. That is, let me write first, then you pronounce it. Okay, that is unicoidism. Unicoidism is what? It is a hormonal disorder due to the deficient secretion of testosterone. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट। इन ऑब्वियसली मेल में ये प्रॉब्लम पाया जाएगा, यूनोकॉर्डिज्म। इन दिस केस द सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन अफेक्ट होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट prostate gland, seminal vesicle, and penis. First, second, and third. This is secondary sex organs. Penis, seminal vesicles, prostate glands are get affected. They are underdeveloped and non-functional. क्या है ये? Underdeveloped है, मतलब स्पर्म तो बनेंगे लेकिन पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा, कॉपुलेशन नहीं हो पाएंगे। सेमिनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशन ही नहीं देगा, स्पर्म प्रोडक्ट होगा, तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, प्रॉपर मेंटेन नहीं हो जाएंगे, राइट। प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी जो है वो जो सीमेन होता है, सीमेन में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का, उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा, तो ये अंडर डेवलप्ड होते हैं और क्या होते हैं, एंड नॉन फंक्शनल होते हैं, दे आर नॉन
फंक्शनल होते हैं. ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन यूनोकॉइडिज्म. The external male sex character like beard, mustache, masculine voice fail to develop. देखो, secondary sex organ ही नहीं हो रहा है, तो secondary sexual जो characteristics है वो भी नहीं आएगी प्रॉपर, राइट? सो एंड डेफिनेटली अगर ये दोनों चीज नहीं है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. ओके, सो नॉट फॉर्म प्रॉपरली. ओके, then we are moving to the next disorders, that is ग्रेव्स डिसीज. क्या है? ग्रेव्स डिसीज. तो ग्रेव डिसीज में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म. ये क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म है ये, ठीक है. इट इज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन. क्या होगा? थायरोक्सिन जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा. इट सिम्टम्स इंक्लूड द प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल. क्या हो जाएगा? आई बार बाहर आ जाएगा, राइट? प्रोट्रूशन ऑफ, ऐसे लगेगा गिरने वाले हैं. प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, दैट इज कॉल्ड एक्सोथैलेमस. इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथैलेमस. प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड एक्सोथैलेमस. excessive fat near the eyes. excessive fat near the eyes. वेट लॉस होगा, नर्वसनेस होगा. वेट लॉस होगा, नर्वसनेस ज़्यादा पाया जाएगा. एंड एक्सेसिव प्लस एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी यहाँ पे. ओके, एंड टॉक्सिक नोडुलर गॉइट. ग्रेव्स डिसीज में ही टॉक्सिक नोडुलर गॉइट होगा, दैट्स कॉल्ड प्लमर्स डिसीज. ग्रेव डिसीज में ही क्या होगा? एक एडिशनल थिंग, प्लमर डिसीज. उसमें क्या है? प्लमर डिसीज में टॉक्सिक नोडुलर गोइटर. गोइटर गोइटर क्या है? इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ T3. T3 का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा, दैट इज टॉक्सिक नोडुलर. और जो सिंपल गोइटर है उसमें क्या हो रहा है? इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ T3. T3 लेस है. ओके, तो सिंपल गोइटर का होगा T3 में होगा. टॉक्सिक नोडुलर गोइटर उसमें T3 क्या हो जाएगा? इट इज कॉज एक्सेस सिक्रीशन, एक्सेस सिक्रीशन हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट वन, दैट इज जाइगेंटिज्म. अभी देखो हमने एक्रोमेगाली किया, जाइगेंटिज्म के बारे में हमने बोला नहीं है, बट क्या है जाइगेंटिज्म? इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ जो हार्मोन है एक्सेस है. ओके, बट कहाँ से है? अर्ली एज से. तो बोन ग्रोथ स्टॉप नहीं हुआ है, तो बोन ग्रोथ के साथ ही क्या है? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो ये ना प्रॉपर जायंट होगा. एक्रोमेगेली में क्या हुआ था? बोन ग्रोथ रुक गया था, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा था, राइट? सो इट इज कैरेक्टर विद द लार्ज एंड वेल प्रपोर्शनेट बॉडी. तो जाइगेंटिज्म क्या होगी यहाँ पे? वेल, सॉरी, लेट मी राइट फर्स्ट, लार्ज. ओके, लार्ज एंड वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी. खरी जैसे बॉडी होगी, प्रोपोर्शनेट बॉडी होगी. जाइगेंटिज्म में क्या होगा? प्रॉपर भूत दिखाई देगा. भूत मतलब अजीब सा दिखाई देगा. जाइगेंटिज्म में भी क्या होगा? लार्ज दिखाई देगा. पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. देन गायनेकोमास्टिया. अभी गायनेकोमास्टिया कहाँ प्रोड्यूस होगा? गायनेकोमास्टिया देखो, इन फीमेल ब्रेस्ट लार्ज होने चाहिए. लार्ज होने चाहिए मतलब प्रॉपर डेवलप्ड होने चाहिए, राइट? बट इन केस ऑफ मेल अगर ब्रेस्ट एनलार्ज हो गया तो इट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? सो गायनोकोमेस्टिया, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल. इट इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल. तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? Okay, so gynecomastia occurs mainly due to the disturbance in a estrogen and testosterone ratio. जो टेस्टोस्टेरॉन इज टू एस्ट्रोजन जो रेशो है वो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया. ओके, तो इससे क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया हो गया इन मेल्स.
देन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव पैराथार्मोन। क्या हो जाएगा? जो पैराथ हार्मोन है वो एक्सेसिव हो जाएगा इन हाइपरथायरॉयडिज्म। Let me write it properly. I don't know why what is happening to this pen. Let me write it properly in this page. किसके बारे में बात कर रहा है? हाइपर, देखो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ओके, सो जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, डेफिनेटली इसमें क्या होगा? जो पैराथ हार्मोन है वो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, ड्यू टू द ट्यूमर इन पैराथायरॉयड ग्लैंड। किसकी वजह से हो रहा है? ट्यूमर की वजह से हो रहा है। कहाँ पे? ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या है? ट्यूमर है। ओके, सो इट सिम्टम्स इंक्लूड किडनी स्टोन। ये मोस्टली क्या करेगा? किडनी स्टोन कॉज करेगा। ओके, यूजुअली ड्यू टू द ट्यूमर। इंडाइजेशन करेगा, डिप्रेशन होगा, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन हो जाएगा इससे, राइट। मसल वीकनेस होगा, और क्या होगा इसके पास? मसल वीकनेस होगा, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। देन व्हेन यू टॉक अबाउट दी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो इसमें क्या हो रहा है? जो पैराथ हार्मोन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टिटानी। ओके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? टिटानी हो रहा है। इट इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसिकेशन ऑफ इट सिम्टम्स टू द मसल स्पाज्म। टिटानी को ही क्या बोलते हैं? मतलब इसमें क्या होगा? मसल स्पाज्म होगा। देखो यहाँ पे मसल वीकनेस था, यहाँ पे मसल स्पाज्म हो रहा है, दैट इज टिटानी, दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पैराथार्मोन। ड्राई स्किन होगा, स्किन कैसे होगा? ड्राई स्किन होगा। एंड नमनेस इन द हैंड्स एंड फीट, प्लस numbness in hands and feet. क्यों? क्योंकि पैराथर्म कम है, टिटानी है, मसल स्पाज्म होगा तो नमनेस रहेगा, ठीक है। देन साइमंस डिसीज, साइमंस डिसीज। अभी इस साइमन डिसीज में होता क्या है? लेट्स स्टडी अबाउट दिस, दिस इज द लास्ट वन। सो इन दिस केस इट कॉज ड्यू टू द एट्रोफी और डीजनरेशन ऑफ एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट। एट्रोफी, कोई ऑर्गन अपने आप बढ़ जाता है, एट्रोपी हो सकती है, या फिर डी जनरेशन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब है किसका? अरे व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पेन? एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, अगर ये डिग्रेडेशन हो गया तो डेफिनेटली जो हार्मोन सिक्रेट होने हैं वो नहीं होंगे वहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। पोस्टीरियर से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर में क्या प्रोड्यूस होता है आपको तो पता है, राइट। सो इन दिस इज द स्किन ऑफ द फेस बिकम्स ड्राई। स्किन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ड्राई हो जाएगी। ओके, रिंकल्स, स्किन हो जाएगी, एंड शोज द प्री मैच्योर एजिंग। तो प्री मैच्योर एजिंग दिखेगी, तो दैट इज कॉल्ड साइमंस डिसीज, जहाँ पे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या हो जाता है? हार्म हो जाता है। So here we have completed the which chapter? Tell me. भूल गए क्या? इतने सारे नोट्स बनाते बनाते हम हाँ, हमने क्या केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो दिस ऑल आर नोट्स। लेट मी टेल you we have done this chapter in a proper way. So thank you for paying attention.